So I'm Drishti Singla and I'm from Cook and Chef. And we have taken an initiative कि हम successful chefs की story अपने audience तक पहुंचाएं. So today we have Gaurav Datta with us. So thank you so much for joining, sir. So please introduce yourself to the audience. Okay. Drishti, first of all, thank you for giving me an opportunity to speak at this platform. And you are actually doing a great job of taking our stories back to the people, because it's a need of an hour wherein post-COVID people are leaving our industry and joining alternate streams. Basically, मैं एक born and brought up in Mumbai से मैं belong करता हूँ. I'm a Bengali but born and brought up in Mumbai. And मैंने अपनी schooling पढ़ाई सारा वहाँ से ही किया है. And I always to be a fine artist. And बचपन से sketching वगैरह मतलब मुझे किसी ने सिखाया नहीं है, मैं बहुत बचपन से ही खुद ही से करता हूँ. But then किसी ने मुझे गाइड किया कि फाइन आर्टिस्ट बनने के लिए एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए वहाँ पे आर्ट फील्ड में जाना सही नहीं है, मतलब आप भूखों मरोगे, ऐसे किसी ने मुझे बोला. So then I decided to join hospitality क्योंकि खाने पीने का शौक. मुंबई में क्या होता है कि मम्मी और डैडी दोनों भी वर्किंग थे, तो बहुत कम एज से मुझे खाना बनाना सीखना पड़ा. So by the age like I reached 10th standard, I could cook all the food like my mother and my dadi at home. So that was where I had a knack or love for food. And then after completing 12th, I joined Anjuman Islam College in VT. And वहाँ से ही मैंने 3 साल का होटल मैनेजमेंट पढ़ाई किया है. So I am a graduate in hospitality management. And I did a internship in Trident Nariman Point, which is an Oberoi group. और फिर जब ग्रेजुएशन खत्म हुआ 3 साल के बाद कॉलेज से ही मुझे प्लेसमेंट मिला ट्राइडेंट की एक प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी में, ओबरॉयज की एक प्री ओपनिंग प्रॉपर्टी में एज अ सुपरवाइजर मैनेजमेंट ट्रेनी, जिसको ओसर बोलते. सो वहां से फिर 2-2.5 साल काम करने के बाद में मैंने शेफ अजय चोपड़ा के साथ भी काम किया है वेस्ट इन मुंबई में. देन आई वर्क पलेडियम मुंबई विच इज नाउ नोन एज सेंट रीजस मुंबई. ठीक है, वो लोअर परेल में है. वहां पे मैंने एक फाइन डाइन इंडियन रेस्टोरेंट का ओपनिंग किया है शेफ अंगद राय के साथ, जो मेरे गुरु है, मेरे मेंटर है. एंड देन आई वर्कड विद नोवोटेल जुहू. नोवोटेल जुहू में फिर 2 साल काम करने के बाद मैं वर्क विद ताज लैंडसेंड मुंबई. मुंबई में जो मन्नत है, शाहरुख खान का घर तो सभी को पता है, उसी के बाजू में ही एकदम है. वहां पे मैंने 5 years काम किया है. 4 years एज अ बैंक्वेट शेफ एंड 1 year एज अ फाइन डाइन Indian restaurant का head chef. After that, I met with this guy. His name is Mr. Keur Joshi, and Mr. Keur Joshi is co-founder of Make My Trip. Deep Kalra के बाद में Keur Joshi is the co-founder. So this is a startup where I've joined, and Keur said that मुझे hospital चलता है, क्या काम होता नहीं होता. So he picked me up. And I joined here as an executive chef. I take care of the end. Currently in this place where I'm working now, the name of this place is Wildlife Luxuries India Private Limited is the company. And this is the first unit that we are opening. The name of this unit is Tipai. So Tipai basically जो jungle goddess है उसके नाम से derive हुआ है, and ये property का नाम हमने Tipai रखा है. It's a very high-end and very luxurious 36-acre property, and it's a self-sustainable property. And we have 19 villas. 19 villas, 15 are forest villas, 4 are your very luxury villa, which are 1 lakh rupees per night. It is so high-end. And the forest villas are around 80,000 rupees per night. So हमारे यहाँ पे जो तिपेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, लोग दूर दूर से यहाँ पे टाइगर देखने आते हैं, टाइगर सफारी के लिए आते हैं. पर हमारा जो एक उद्देश्य है कि आप सिर्फ टाइगर सेंट्रिक होके जंगल में न जाए. जंगल आप जाए एक्सपीरियंस करने के लिए, फूल पत्ते पौधे सभी कुछ देखने के लिए. एंड हम यहाँ पे लोगों को समझाते हैं कि सेल्फ सस्टेनेबिलिटी क्या है. सो हम ऑर्गेनिक चीजें खुद यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, हनी बी फार्मिंग करते हैं. हमारा तालाब में मच्छी है, अराउंड 1500 मच्छी हम यहाँ पे करते हैं. रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, सोलार सिस्टम पे काम करते हैं. जितने भी यहाँ पे किचन में काम होता है सबके सब हम
जैम तक इन हाउस बनाते हैं, हमारी बेकरी खुद की, हम चॉकलेट्स इन हाउस बनाते हैं। मतलब एक वाइल्ड लाइफ प्रॉपर्टी में लोग सोच नहीं सकते वो चीज हम यहाँ करते हैं। और एक 5 स्टार होटल में लोगों को ये सारी एक्सपेरिमेंट्स करने का चांस नहीं मिलता होगा। ये सारी चीजें हम यहाँ पे वाइल्ड लाइफ लग्जरीज में करते हैं। और मैं बहुत ही खुशनसीब हूँ ये इंडिजिनियस जो लोग हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटी है, इनके साथ, क्योंकि 90% जो है हमारे यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी काम करती है। और हम ट्राइबल को फुल एम्पावरमेंट देते हैं। एंड जो इंडिजिनियस जो ये चीजें हैं जिसको हम भूलते जा रहे हैं और ये कहीं ना कहीं लुप्त होती जा रही है, इस बात अभी की जनरेशन को ये सारी चीजें पता नहीं। मैं पूरा दायित्व लेता हूँ इन सारों चीजों को लोगों के सामने लाने के लिए। ठीक है, बहुत सारे जंगल के ऐसे पत्ते हैं, फ्रूट्स है, फल है, जिसका हमें कोई आइडिया नहीं है। और 5 स्टार होटल में कोई डालता भी नहीं, कोई एफर्ट्स लेता नहीं। बट हम ये जो हाई एंड क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं, हम उनको ये लोकल फ्लेवर्स, लोकल चीजें, हम उनको एडुकेट करते हैं इस चीज के बारे में। सो आई कैन से लाइक मैं एक जमाने में 5 स्टार होटल का शेफ था, बट नाउ आई एम मोर ऑफ एन इंडिजीनियस शेफ। इंडिजीनियस मतलब ट्राइबल फूड के साथ, कल्चर के साथ मिलजुल के जो काम करने वाले हैं, मैं उन शेफ में से एक। That's really great, sir. That's really great. तो आपने कब सोचा कि मैं इस इंडस्ट्री में आता हूँ, leaving your hobby which was sketching, right? आपने कब सोचा? So this was a decisive period. मैंने 8th स्टैंडर्ड में एलिमेंट्री दिया, 9th में मैंने इंटरमीडिएट एग्जाम दिया, 10th में फाइनली डिसाइड करना होता है करना क्या। स्टिल 11th एंड 12th तक भी मैंने सोचा कि मैं कॉमर्स लेके पढ़ा हूँ, तो मैंने सोचा क्या करना है, डैड का बिजनेस ज्वाइन करना है, क्या करना है। सो बट देन व्हाट मैंने देखा कि किचन में जो कुकिंग होता है एंड ड्राइंग में क्या होता है, आप स्केच निकालते हो कैनवस के ऊपर या पेपर के ऊपर, यहाँ पे एक शेफ प्लेट के ऊपर ड्रॉ करता है। इट इज द ओनली डिफरेंस। और दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज सिर्फ ड्रॉ करके छोड़ना नहीं है, आदमी को खाना पसंद भी आना है, गेस्ट को खाना पसंद भी आना है, उसका स्मेल बराबर होना चाहिए, उसकी टेम्परेचर बराबर होना चाहिए, उसका कलर बराबर होना चाहिए, टेक्सचर चाहिए, ऑथेंटिसिटी चाहिए। मतलब सारे सेंसेस आपके फूड में काम होते हैं। तो ये ड्राइंग से भी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसको मैंने एज अ चैलेंज मैंने लिया। एंड मैं तो मतलब आई मीन सोशल मीडिया में काफी एक्टिव हूँ, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन में भी मेरे प्रोफाइल्स है, जो मैंने लिंक आपसे शेयर भी किए। तो आप उसमें देख सकते हैं कि लाइक हर एक चीज, और आज के जमाने में तो हर एक चीज कॉन्सेप्चुअल है। सो मुझे लिखने का भी बड़ा शौक है, मैं लिखता भी हूँ। तो मैं कहीं ना कहीं इन कॉन्सेप्ट्स को रिटर्न, मतलब पहले बनाता हूँ, प्लेट पे उतारता हूँ, रिटर्न करता हूँ, राइट करता हूँ, उसके ऊपर आर्टिकल लिखता हूँ, एंड देन उसको पब्लिश करता हूँ। सो कोरा में भी मेरा एक पेज है जिसके ऊपर मैं कुछ पोएम्स भी लिखता हूँ, उसके अलग पेज है। और जहाँ पे मैं फूड के ऊपर जो R&D करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, जैसे हाल ही में मैं हैदराबाद गया था, तो उस खाने के बारे में मैंने लिखा है। गुजरात जाके आया हूँ, मुंबई जाके आया हूँ। तो ये क्या करता हूँ मैं, धीरे धीरे जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस है उसको मैं लिखता हूँ। तो इसलिए इस स्कूल से ही मेरे को जो इंटरेस्ट है, तो जरूरी नहीं है कि मतलब मैं अगर कुछ जगह तो मैं मन मार के बैठ गया, बट आई हैव टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव अपॉर्चुनिटी। सो आदमी आदमी को टाइम के साथ में वर्सेटाइल होना है, एंड जिंदगी को हमें एक्सेप्ट करना है। हमारे हिसाब से जिंदगी कभी नहीं चलता। तो जिंदगी जो ऑफर करता है, मैंने उसको सर झुका के एक्सेप्ट किया। हेलो, That's really nice. That's really nice to hear. हेलो, आपके एंड से म्यूट हो गया था। हाँ, या सो दैट इज इट। मतलब मेरा फिलॉसफी है कि मतलब जिंदगी आपके हिसाब से नहीं चलेगी, आपको जिंदगी के हिसाब से ढालना पड़ेगा, समय के हिसाब से ढालना पड़ेगा। या तो ये जो रेस्टोरेंट और जॉब है, ये ना होटल इंडस्ट्री, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब। तो आपने कभी सोचा कि मैं क्विट कर देता हूँ या मैं अपना पाथ चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज अभी ये बिल्कुल स्टार्ट ही किया मैंने। तो मुझे याद है मेरा फर्स्ट डे, मतलब 18 घंटे हो गए थे, कोई मेरे को पूछ भी नहीं रहा था घर जाएगा नहीं जाएगा। मेरी इंटर्नशिप की फर्स्ट डे थी, और हॉस्पिटैलिटी में ट्रेनी है, उसका लाइफ मतलब बहुत बुरा होता है। ठीक है, तो 18 घंटे, एंड देन माय फादर कॉल्ड मी 11 o'clock, भाई तू घर नहीं आया। मैं बोला कि मैं अभी भी काम कर रहा हूँ।
तो डैड सेड ओके ठीक है, कुछ खाना वाना खाया तूने? एंड आई क्राइड, आई कट द फोन कि डैड को पता ना चले, एंड आई क्राइड लिटरली। सो डैड, मैं अपने जिद में इस इंडस्ट्री में आया, मेरे डैडी ने कभी मेरे को या किसी ने भी फोर्स नहीं किया। सो डैड वाज ऑलवेज, फैमिली से हमेशा था कि बिजनेस है, बिजनेस देख ले, ये कर ले, वो कर ले, बट मैंने अपना ही सुना कि मुझे अपना पैशन फॉलो करना है। सो पैशन के नाम से घुस तो गए, इसको आधा छोड़ नहीं सकते। अगर आधे पे छोड़ दिया तो सब रिलेटिव, घर वाले सब बोलेंगे कि डर गया, ये हो गया, वो हो गया। सो आई एक्सेप्टेड द चैलेंज, एंड डिफिकल्ट था, बट फिर भी मैंने सर झुका के सबकी गालियां और सब कुछ सुना। बिकॉज क्या है, आप हम जो अपने टीनेज में या बचपन में होते हैं, फादर और मदर के गाइडेंस में, उनके छत्र छाया में होते हैं, बहुत सेफ और कंफर्टेबल होते हैं। द मोमेंट वी आर आउट इन द मार्केट, वी आर वल्नरेबल, वी आर ऑन आवर ओन। सो दिस इज द चैलेंज। सो मैंने इसको एक्सेप्ट किया, और आदमी की फितरत ऐसा है ना कि वो जुगाड़ निकाल ही लेता है जीने के लिए। मतलब उसको अगर जंगल में भी छोड़ो तो अपने आप सीख जाता है कैसे करके एडेप्टेबल होना है या फ्लेक्सिबल होना है। सो आई ऑल्सो गॉट अडेप्टेड टू इट। धीरे धीरे करके गालियों की आदत पड़ गई, लौंग आंच की आदत पड़ गई, खाना खाया नहीं खाया मुझे फर्क पड़ना बंद हो गया। बट जो मैं था, रफ एंड टफ एंड हार्ड पर्सन, much more rough person, practical person. So yeah, but yeah, difficult तो है, मैं ये डिनाई नहीं करूंगा। जो बाहर से दिखता है बहुत ग्लोरियस है, पर पीछे काफी प्रेशर होता है। एक एक प्लेट जब निकलता है, 3 लाख 3.5 लाख का जब रेस्टोरेंट में बिजनेस होता है। जब मैं बैंक्वेट में था, मैंने 100 करोड़ के बैंक्वेट देखे, जो साल का 100 करोड़ करता है। तो मतलब मैं घुसता था सुबह 9-10 बजे, एंड देन रात को घुसते घुसते 11-12-1 बज जाते थे। एंड मुंबई में मतलब 2 घंटे की ट्रैवलिंग, 3 घंटे की ट्रैवलिंग, हार्डली 5 to 6 hours I would able to sleep. So yeah, difficult तो है, but then I have to keep myself motivated. I have to keep myself motivated. अब उसके लिए मैं क्या करता हूँ वो मेरे ऊपर। आप क्या करते हो आपके ऊपर। हर एक इंडिविजुअल का खुद को मोटिवेट करने का अलग होता है। So I think I have made small targets for myself. ये work related, kept that balance with my personal life. कि मुझे personal life में क्या achieve करना है। Hello? हाँ जी, you were audible. Yeah. So मतलब your decision in this industry made you more, hard, mature, है ना? करेक्ट। सो आजकल लोग क्या, बच्चे मतलब जो आज की जो यंगस्टर्स है, कुछ कॉलेजेस में भी जाता हूँ एज अ गेस्ट लेक्चरर, उनसे मैं बात करता हूँ। सो पीपल आर क्रेजी अबाउट देयर फर्स्ट पे चेक, एंड दे वांट टू नो मैं 1 लाख रुपए कब कमाऊंगा। बट वो कभी खुद को ये कि अगर मेरी फर्स्ट सैलरी 10,000 या 12,000 की है, उसकी मैं क्या सेविंग करता हूँ। मैंने कहा क्या मैंने LIC किया है, मैंने म्यूचुअल फंड किया है, क्या मुझे टैक्स कैलकुलेशन आता है, ये सब किसी को नहीं पता। देयर आर यंगस्टर्स हु डोंट इवन नो कि बैंक में जाके अपना अकाउंट कैसे खोलना है। सो कमाने से और आप प्रोफेशनल हो, पैसे कमा रहे हो, बट देन यू शुड आल्सो नो हाउ टू बैलेंस एंड हाउ टू utilize your money or your wealth. Hello? Yeah. बिकॉज सैलरी आपको कभी अमीर नहीं बनाती, या सैलरी आपका जो स्थिति है, आप अगर गरीब हो, आपका सैलरी आपको ऊपर नहीं उभारेगा। आपको आपकी जो प्लानिंग है, जिंदगी की तरफ जो अप्रोच है, रवैया है, वही आपको ऊपर उठाएगा। और ये जो छोटे छोटे जो आप सेक्रीफाइस करके जो आप बचाते हो, सैलरी बचाते हो, इन्वेस्ट करते हो, ये आपको बड़ा बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैनॉट वर्क ऑल माई लाइफ। आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम आई हैव टू बी एन एंटरप्रेन्योर। या तो मेरे को डैडी का बिजनेस देखना है, या मेरे फील्ड में कुछ ना कुछ करना है। बिकॉज फिजिकली इतना पॉसिबल नहीं है कि मैं एक टाइम के बाद में कंटिन्यूसली किचन में खड़ा रह के रात तक काम करूँ, ये पॉसिबल है नहीं। सो दैट्स व्हाई आई आफ्टर वर्किंग फॉर 12 years इन बिग होटल्स, आई टुक दिस चैलेंज एंड जॉइंड दिस स्टार्टअप। अब स्टार्टअप में होता क्या है कि देयर इज समवन हु इज इन्वेस्टिंग मनी, एंड यू हैव ऑल द स्किल्स एंड an opportunity to explore the market. जो आपका दिमाग है, जो आपका स्किल है, उसको हुनर को दिखाने का भी आपका मौका है। So I am utilizing to the full extent.
So I don't know, I will tell most of the people to come out of their comfort zone and continuously challenge yourself to come out, to do well. And अगर ये जगह अच्छा करता है दृष्टि, I will tell you, I am contributing. Maybe मैं पैसे से तो contribute नहीं कर रहा हूँ, but then I am helping the society and the to generate more jobs, more opportunity, more generate. And और जितने भी वेंडर्स है उनके पास में भी इनडायरेक्ट एक मनी फ्लो जाता है, वेल्थ फ्लो जाता है. सो बेसिकली हम घर में बैठ के बहुत कोसते हैं, गवर्नमेंट को कोसते हैं, सेंटर को कोसते हैं, इसको कोसते हैं, उसको कोसते हैं, बट हम कभी भी ऐसे स्टार्टअप के साथ जुड़ के इनको खड़ा करने की कोशिश नहीं करते. जिस दिन एक स्टार्टअप, एक कंपनी खड़ा होती है, बहुत सारे पेट पलते हैं उसमें. सो सही बात है सर. so this is what my view is towards this. So it is a very sensitive question. Maybe शायद आपने ये फील किया हो या ना किया हो, it can vary. तो ऐसा बोलते हैं ना कि इस इंडस्ट्री में तो शेफ एंड ऑल है, जितनी रिस्पेक्ट वो डिजर्व करते हैं, they don't get that much. So have you ever felt that in your life? Correct. So I will tell you, I will not take anybody's name, I will not take any brand name or anything. ठीक है. तो गालियां तो हमारे इंडस्ट्री में लाइक ब्रेड एंड बटर है, मतलब हर 2 मिनट में मिलता है. एंड देयर इज अ होटल, 5-star होटल आई वर्कड इनटू इन माय करियर, जहां पे मेरे एग्जीक्यूटिव शेफ ने मुझे धक्का तक दिया. ठीक है. देयर इज एन एग्जीक्यूटिव शेफ इन माय लाइफ who is still working in a very big brand and good brand, has abused me in a common chef's forum. Okay. And wherever I worked, I ensured that I put my views across. ठीक है. मैं एक अकेला आदमी रातों रात तो सिस्टम को खत्म नहीं कर सकता, मतलब चेंज नहीं कर सकता. दैट इज नॉट इन माय कंट्रोल. आई एम अ वेरी बट मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर जिसके साथ में भी ऐसा होता है, दे शुड हाईलाइट. ठीक है. दे शुड नॉट, क्योंकि आधे से ज्यादा टाइम क्या होता है, लोग इसको एक्सकेलेट नहीं करते. ठीक है. आपका अगर लंबा ड्यूटी है, एंड होटल्स को भी समझना पड़ेगा कि एम्प्लॉइज आल्सो नीड काउंसलिंग मेंटली. मतलब व्हेन आई वाज इन अ टीनेज, मेरा पर्सनल लाइफ, लाइक माय रिलेशनशिप विद माय गर्लफ्रेंड एंड व्हाटएवर, एवरीबॉडी हैव टू गेट मैरिड एंड एवरीबॉडी हैज अ पर्सनल लाइफ. सो मतलब काफी मुश्किल हो जाता है काम के साथ. मतलब 12-13-14 hours of job after coming out of the hotel, I don't able to give time to the person I love the most, that I want to see a movie with you or spend some time with you. Maybe in that case I am not able to plan my time with my family, with my own parents as well. So ये काफी प्रॉब्लम हुआ है. ठीक है. एंड कोई इस चीज को सपोर्ट नहीं करता. एंड मतलब एंड इससे क्या होता है, काफी लोग डिप्रेशन से भी गुजरते हैं, अल्कोहलिज्म में जाते हैं, ड्रग्स लेते हैं. ये सब होता है, मतलब सामने दिखता नहीं है. एंड बॉलीवुड इज नॉट द ओनली वन टू बी ब्लेम्ड. ये सब कुछ नहीं है, हमारे इंडस्ट्री में भी होता है. बट खाली ऐसा है कि गली नुक्कड़ में होता है, कोने कुचों में होता है, तो कोई पता नहीं चलता किसी को. ठीक है. एंड वी आर नॉट दो सेलिब्रिटी, एंड वी आर नॉट दो सेलिब्रिटीज के हमको कोई ये करेगा. ठीक है. बट होटल्स को भी आई थिंक शुड हैव अ काउंसलर who can, or psychiatrist maybe, who can sit and talk to the employees. काफी होटलों में होता है जहाँ पे there are different forums and different platforms wherein we give feedback to the company. काफी होटलों में ऐसा भी होता है कि वो फीडबैक के पीछे कोई ना कोई खड़ा. And I was putting the feedback wherein my boss was standing backside and he was guiding me. I said you should not be standing here. I was very blunt about. ठीक है. मैं पहले से ही मैं थोड़ा सा एग्रेसिव हूँ इन सब मामलों में. तो आई सेड यू शुड नॉट बी स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ बिहाइंड मी. आई विल नॉट फिल दिस फॉर्म अनटिल एंड अनलेस आई एम अलोन इन दिस प्लेस. नहीं, मैं तो खाली हेल्प कर रहा था कि अगर तुझे कोई क्वेश्चन आई कैन कम्युनिकेट, आई कैन राइट अ कंप्लेंट लेटर, आई कैन डू लॉट मेनी थिंग्स. आई डोंट नीड एनी काइंड ऑफ गाइडेंस. ठीक है. एंड हॉस्पिटैलिटी में क्या है, काफी अनएडुकेटेड भी कुछ लोग आते हैं, जैसे बिहार से, यूपी से, गढ़वाल से. दे वर्क फॉर तंदूर वगैरह में इंडियन सेक्शन में काम करते हैं.
उनको कभी कभी प्रॉब्लम होता है ये फीडबैक फॉर्म्स भरने में. That is also a loophole wherein this management people उनको fabricate करते हैं. ठीक है, they are not honest about it, क्योंकि उनका जो annual appraisal है जो managers का, that depends upon, it's a 360-degree appraisal that happens in a good organization. तो उनको पता है कि अगर नीचे वालों ने हमको अच्छे से रेटिंग नहीं दिया तो हमारा सैलरी बढ़ेगा नहीं. If someone, That's true, sir. तो ये और सब ये मैनिपुलेट टॉपिक करते बहुत हैं. ज्यादा अवेयरनेस इसमें आनी चाहिए. अभी तक इस बिल्कुल. टॉपिक को ज्यादा हाईलाइट नहीं करते हैं लोग. तभी वी रेज दिस क्वेश्चन एंड वी आस्क ऑल द शेफ इन आवर इंटरव्यूज दैट वेदर दे हैव फेस्ड इट और नॉट, और वो उनका ओपिनियन इस बारे में क्या है. और दृष्टि मैम ये भी बोलना चाहूंगा कि मतलब सिंस आई एम नो मोर विद दिस होटल्स, 5-star hotels now, I'm working with a startup now, and even if this interview my owner sees, he will praise me that you are trying to bring a change in the industry in a very aggressive manner. He'll love that because he also looks to change the society in his own good manner. If I would have been an Oberoi and Taj or any big hotel, 5-star hotel right now, शायद मैं आपको इतने openly ये सारी बातें नहीं बोलता, to be very honest. Of course, sir, but of course. I don't get scared of it now. And so yeah, people, I think hotels need to be much more sensitive towards employees. 12-13 घंटे काम करते हैं, लेबर लॉ के हिसाब से तो ओवर टाइम भी है बराबर. वाई हमको ओवर टाइम क्यों नहीं मिला जाता? इवन आई हैव गॉट 3 फैक्ट्रीज में, मेरे डैड के 3 फैक्ट्रीज है, हम ओवर टाइम पे करते हैं एम्प्लॉइज को. तो क्यों उस बंदे को ओवर टाइम आप नहीं दे रहे? उस बंदे का अगर ऑफ चला जा रहा है, आप बोलते हो हम उसको कॉम्प ऑफ देते, उसको कॉम्प ऑफ नहीं मिलता है. सिंस यू आर, एंड आई टेल यू, द हायर यू ग्रो अप द लैडर, जिस होटल में समझो यूनियन है, वो तो अपने बंदों को सेफगार्ड कर लेती है, एम्प्लॉइज को सेफगार्ड कर लेती, ठीक है. पर as long you go in a mid management or a management level, you become a sandwich. You become a sandwich between union and you become a sandwich with the managers and जो upper higher management है. ना आपको उस तरह की इंक्रीमेंट मिलती है और आपको रात तक काम करना पड़ता है. they have got union to stand behind them. हाँ, हमारे पीछे तो यूनियन भी नहीं है, तो हम किसको जाके बोले? और एचआर में जाएंगे, वो सारी मैटर एकदम सॉल्व कर देता है. सही बात है सर. So this is what I have to say about it. Yeah. I would also want कि लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस आए. वैसे तो मुझे लगता है कि पहले से कम हो चुकी है ये चीज. Yes, और I agree. फ्यूचर में इसके बारे में लोग और ज्यादा सोचेंगे. अभी के जो जनरेशन है वो someone randomly cannot just abuse them. ठीक है. लोग काफी कंपनीज में भी अभी कम हुआ है, मैं बोलूंगा बंद नहीं हुआ है, काफी हद तक कम हुआ है. तो एम्प्लॉइज के जो लोअर लेवल तक तो है, जब मैं काम करता था 10 साल पहले, 15 साल पहले, तब से तो काफी सुधार हुआ है. ट्रेनीज, इंटर्न्स, ट्रेनीज, ग्राउंड लेवल स्टाफ, but the mid management level is still somewhere in a very bad condition. They don't get the salary and the hike they are supposed to get. And आजकल जो है हॉस्पिटैलिटी में क्या हो रहा है, स्किल के ऊपर से कम, पे चेक के ऊपर से ज्यादा हायरिंग्स हो रही है. फॉर एग्जांपल आई विल गिव यू, ओबरॉय का एक बहुत ही अच्छा रूल है. ओबरॉय ग्रुप में दे हैव अ स्लैब. फॉर एग्जांपल सू शेफ करके एक डेजिग्नेशन है, उसका स्लैब अगर 12 लाख से 14 लाख के बीच का स्लैब है, दे विल एंश्योर दैट वो स्लैब मेंटेन रहे. सो इररिस्पेक्टिव मेरा सैलरी 6 लाख से 7 लाख से या 8 लाख से, उसके ऊपर 30% ले लो, 20% ले लो, ऐसे हाइक की बात नहीं करते. देयर स्लैब रिमेन्स सेम. ठीक है. इररिस्पेक्टिव आई प्रूव व्हाट माय करंट सैलरी इज एंड आई गिव माय ट्रायल एंड इंटरव्यूज एंड आई एम प्रूव. आई विल डायरेक्टली आपको, मेरे को सीधा बोल देंगे 12 से 14 लाख का हमारा स्लैब है, उसके बीच में कुछ भी आपका हो सकता है. आई हैव टू से यस और नो. आई विल गिव इंटरव्यू, गिव ट्रायल, मैं सिलेक्ट हो जाए. I know कि भाई 12 से 14 के बीच में ही मेरे को कुछ ना कुछ मिलने वाला. So I am assured before committing myself to the company, मैं assured हूँ कि 12 से 14 के बीच में मिलेगा. बट अभी क्या हो रहा है,
आपको 30% आपका जो करंट सैलरी है उस पे हाइक दे। मैं अगर पूछता हूँ किसी को कि व्हाट इज द सैलरी बजट ऑफ योर्स, क्या देख रहे हैं आप, नहीं, दैट डिपेंड्स अपॉन योर करंट सैलरी। माय करंट सैलरी एंड माय करंट कंपनी हैज गॉट नथिंग टू डू विथ योर हायरिंग, करेक्ट? यू आर एन एचआर, आपका हायरिंग के ऊपर मेरा करंट का सैलरी का क्या लेन देन है, कोई मतलब ही नहीं बनता उसका, राइट? यू हैव सीन माय सीवी, माय सैलरी इज ऑलरेडी मेंशन्ड ऑन इट. You have to decide, and I have seen companies wherein they are hiring me from a bigger brand. They are calling me for interview and trial for a bigger brand or a big 5-star hotel, to a business class hotel. They are offering me the same salary that I'm getting. ऐसा भी हुआ है आफ्टर गिविंग ट्रायल्स, और एक ट्रायल देने में पूरा दिन जाता है, मतलब पूरी जान निकल जाती है ट्रायल देने में, 12 से 14 आइटम ट्रायल में देना पड़ता है। सो आई थिंक ये सारी बदमाशियां कंपनीज को बंद करना चाहिए, ओनर्स को बंद करना चाहिए. HR has to be much more sensitive towards these topics. Of course, sir. I hope awareness आए लोगों में. So we are moving towards the second round of this interview, which is the rapid fire question. और उसमें मैं आपसे कोई questions पूछूंगी जल्दी जल्दी, और आपने जल्दी जल्दी answers देने हैं, quick answers देने हैं. So are you ready for that? Yeah. Okay. So the first question is, do you think you are successful? Yes. Okay. Second question is your favorite dish or your favorite cuisine? Indian cuisine is my favorite. Dish in particular, if you say fish curry and rice, because I'm a Bengali, तो I am very much, मैं अपने roots से जुड़ा हुआ हूँ, तो favorite dish अगर आप बोलो तो fish curry and rice is my favorite. I can have it any time. Okay. So going back to your first question, where मैंने थोड़ा सा आपको explain नहीं किया, but you asked me whether I'm successful or not. So मैं खुद को successful सोचता हूँ. अगर मैं ये आज सोचूंगा तब मैं कल बनूंगा. So I always think that I'm the most richest, most happiest, and the most successful person in my life, and that's how I'm happy and I'm motivated towards my work. ये बहुत अच्छा motivation का तरीका है. It's a very good criteria to keep in your mind when you're working. Correct. So the third question is, अगर आप इस field में ना होते, इस industry में ना होते, तो आप किस industry में होते? I would have been a good lawyer, because मेरे स्कूल डेज से ही मैं काफी ही क्या बोल क्रांतिकारी बच्चा था. मतलब मेरे सामने मेरे टीचर्स भी, मैं ऐसे ऐसे बातें रखता था, मतलब मेरे टीचर्स मेरे को कभी रिटर्न में जवाब नहीं दे सकते थे. एंड उसके बाद में मैं जब काम में भी गया या कॉलेज में भी गया, आई वॉज वेरी डिसिप्लिन्ड, और मैं रूल से चलने वाला आदमी हूँ. मतलब अगर लाल सिग्नल है तो है, मैं क्रॉस नहीं करूँगा उसको. वेरी डिसिप्लिन्ड इन माई लाइफ. एंड मैं गलत कभी मैं सुन नहीं सकता, ना टॉलरेट कर सकता हूँ. आई इमीडिएटली रिएक्ट टू इट, एंड जैसे क्रांतिकारी बच्चा होता है, जस्ट रिएक्ट करके उसको उसी टाइम खत्म कर देना. So yeah, I would have been a very good lawyer. Okay. So what is your biggest achievement till now in your life? Greatest achievement? हाँ, biggest achievement. Biggest achievement. Okay. So biggest achievement is I joined this project. ये project जब मैंने join किया था, kitchen वगैरह कुछ भी set नहीं था, and I am working with 90% local staff. And currently मैंने kitchen F&B पूरा set किया इस जगह का 1 साल के अंदर. And without a general manager, I am running the entire place on my own with a team of HODs. They report to me, and I take extreme pride कि मैं 90% local staff को लेके यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और ऐसी dishes और ऐसी services हम लोग को यहाँ पे देते हैं कि मतलब बड़े 5-star होटल से भी हम कम नहीं. एंड जंगल के बीच में कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता. मतलब जंगल में अगर कोई जाता है तो रोज अच्छा जो है बुफे में दे दो हमको, बट यू कम हियर विथ योर फैमिली एंड यू ऑर्डर फॉर अ सुशी, यू विल गेट अ सुशी. यू ऑर्डर फॉर अ गुड थिन क्रस्ट पिज्जा, यू विल गेट इट. यू ऑर्डर फॉर अ गुड हॉट मफिन्स, डोनट्स, डैनिश, एवरी फ्रेंच, आप वर्ल्ड की कौन सी भी इंटरनेशनल ब्रेड पकड़ लो या पेस्ट्री पकड़ लो, हम सब बना सकते हैं यहाँ पे और बनाते हैं. सो दिस इज द ग्रेटेस्ट अचीवमेंट आई थिंक for any wildlife. Okay. तो अभी आप
अभी के 5 years के बाद अपने आप को कहाँ स्टैंड देखते हो? I see myself as an entrepreneur. So I see myself 5 साल, तो मतलब मैं अभी 32 हूँ, ठीक है, 33 हूँ, सॉरी, मैं अभी 33 हूँ. So 5 साल, चलो 40 पकड़ लेते हैं. So at the age of 40 to 45, I see myself, retiring myself. I am retiring myself, and I want to start a food processing company, and I want to get into agriculture. ठीक है, तो मेरी 3.5 एकड़ की ऑलरेडी जमीन मेरे डैडी ने ले रखा है, एंड रिसेंटली हमने एक कमर्शियल स्पेस भी लिया है, विच इज ऑन रेंट नाउ. सो मैं गाँव उगाने के बाद मैं उसको फैक्ट्री में प्रोसेस करूं, पैक करूं और बेचूं. सो आई टेक a lot of time in doing a R&D on food processing companies, agro based, semi processed, कैसे होता नहीं होता. बिकॉज हॉस्पिटैलिटी जो है फूड चेन में एकदम एंड में आता है, मतलब जो होटल्स और रेस्टोरेंट है, एंड सबसे पहला वाला जो चेन है वो है किसानों का, और उसके बाद में जो कंपनीज जो उनके प्रोडक्ट को प्रोसेस करता है. आई वांट टू बी ऑन द फर्स्ट चेन. किसान जो कम होते जा रहे हैं, उनको भी जागरूक रखना है, उनके हक के लिए भी लड़ना है. और दी सेकेंड, मतलब उनका जो प्रोडक्ट है वो वेस्ट ना हो, उसको जस्टिस मिले. उसको जस्टिस फूड प्रोसेसिंग कंपनी में ही मिलेगा. मंडी में बेचने जाता है, सही दाम नहीं मिलता उसको, बट फूड प्रोसेसिंग कंपनी में बेचेगा, उसको हर एक चीज का सही दाम. Okay, sir. Okay, that's a really nice idea, innovative idea. Yeah. तो सर बहुत सारे ना फ्रेशर्स हैं, न्यू कमर्स हैं जो इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप उनको कुछ शॉर्ट में और बहुत क्विक में कुछ टिप्स देना चाहोगे? तो उनको क्या ऑलरेडी दिमाग में रखना चाहिए आने से पहले, ज्वाइन होने से पहले? सो बेसिकली जो हॉस्पिटैलिटी ज्वाइन करना चाहते हैं उनको बोलना चाहता हूँ, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस. स्टैग्नेशन तो हर फील्ड में है, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, हॉस्पिटैलिटी हो, मेडिकल हो, लॉयर हो, कोई भी फील्ड में स्टैग्नेशन हर जगह पे है. बट वहां से लड़के ऊपर कैसे आना है वो तो हर जगह पे ही रहे. ठीक है, आपको अपना लड़ाई खुद लड़ना है, नंबर 1. सुनना तो किसी का नहीं है, मतलब यू डू योर ओन. चाहे आपका डिसीजन गलत हो, सही हो, अगर गलत है तो मेरा है और सही है तो मेरा है. यू शुड टेक एक्सट्रीम प्राइड इन योर ओन डिसीजंस एज वेल. एंड गाइस, इफ यू डोंट गेट चांस इन एनी, हम क्या करते हैं ना, स्कूल से ही हमारी एक आदत होती है कि 10th पास करूंगा मैं 80% 90% से, और मेरे को वही कॉलेज चाहिए, मुझे यही चाहिए, मुझे वही चाहिए. हमको चाहना पाना ये सब चालू ही रहता है पहले से. तो वो दिमाग से निकाल दो. जो पहले सामने थाली में पड़ा है वो लड्डू खाओ. वो नहीं खाओगे तो डिफिकल्ट है फिर. एंड व्हेन हम एडल्ट हो जाते हैं, अपनी एक लाइफ और जिंदगी होती है, वो दोस्त को भी अपना डिसीजन खुद लेना पड़ता है और हमें भी अपना डिसीजन खुद लेना पड़ता है. सो दैट टाइम यू आर ऑन योर ओन. So learn to, fight your own fight. So that was a very good motivation for all the freshers जो भी इस field को join करना चाहते हैं. So thank you so much for joining, sir. Thank you so much for giving your input और awareness spread करने के लिए बहुत सारी बातें आपने बताई. और I guess जो freshers हैं उनको बहुत ज़्यादा knowledge मिलेगी आपके इस interview को देखकर. So please follow Cook and Chef for new opportunities in your life. And I can see the vibes coming up from, in a right direction from your company. And I am very much sure that it will open new dimensions for the prospects who will be going through your company in future. Thank you so much.